سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جمادی الثانی 96 ہجری کا مہینہ تھا۔ ایک روز خلیفہ کا ایک قاصد محمد بن قاسم کے پاس یہ حکم نامہ لے کر آیا کہ فوج جہاں ہے وہیں رک جائے اور کسی طرف بھی پیش قدمی نہ کی جائے۔ کیا تم بتا سکتے ہو وہاں کے حالات کیا ہیں؟ محمد بن قاسم نے قاصد سے پوچھا، یہ حکم کیوں بھیجا گیا ہے؟ قاصد بڑے ذہین ہوا کرتے تھے۔ جن قاصدوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا وہ عموماً فوج کے عہدیدار اور فہم و فراست والے ہوتے تھے۔ امیر سندھ قاصد نے محمد بن قاسم کو بتایا، اب وہاں کے وہ حالات نہیں رہے جو حجاج بن یوسف کی زندگی میں تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک بیمار ہیں، اس بیماری سے شاید وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ خلافت کی جانشینی پر کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بنو امیہ کا یہ خاندان خلافت کے جھگڑے میں آپس کے خون خرابے میں ختم ہو جائے گا۔ مرحوم خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنی جگہ اپنے اس بیٹے ولید بن عبد الملک کو خلافت کے لیے اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور ولید کے بعد ولید کے چھوٹے بھائی سلیمان کو جانشین بنایا تھا، مگر ہمارے خلیفہ ولید اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کر چکے ہیں۔ امیر سندھ، آپ کے لیے مجھے ایک خطرہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے چچا حجاج بن یوسف مرحوم خلیفہ ولید کے ساتھ تھے۔ بنو امیہ کے بڑے بڑے سرداروں کو حجاج نے اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا اور انہیں کہہ رکھا تھا کہ عبدالعزیز کو ہی خلیفہ تسلیم کریں اور سلیمان کی مخالفت کریں۔ اس وجہ سے سلیمان اور حجاج کی بول چال بند ہو گئی تھی، لیکن سلیمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ حجاج جیسے جابر آدمی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حجاج کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ حجاج انتقال کر گیا، سلیمان کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا ہے۔ اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک دور اندیش ہیں، وہ تو اب بستر سے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے مشرقی ملکوں کے ہر حاکم اور سالار کو حکم بھیجا ہے کہ جہاں ہو وہیں رہو ورنہ خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ انہیں غالباً اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ حکم بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اور دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے سالار لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہوں اور سلیمان یہ حکم بھیج دے کہ لڑائی بند کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پسپا ہو کر واپس آ جاؤ۔ اس ادیڑ عمر باشعور قاصد نے کہا۔ افق سے اندھیرا سا اٹھتا نظر آ رہا ہے، یہ زوال کا اندھیرا ہے۔ محمد بن قاسم جو پہلے ہی حجاج بن یوسف کی وفات کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا، خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بیماری سے اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی میں اضافہ ان حالات نے کیا جو خلافت کی جانشینی پر پیدا ہو رہے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک سے محمد بن قاسم کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ سلیمان کے دل میں محمد بن قاسم کے خلاف لڑکپن سے ہی قدرت بری ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، محمد بن قاسم نے اخبار کر قاصد سے کہا۔ افق سے اندھیرا اٹھ رہا ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ قاصد کے جانے کے چند دنوں بعد دوسرا قاصد یہ خبر لے کر آیا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا ہے اور سلیمان بن عبد الملک نے خلافت سنبھال لی ہے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ نئے خلیفہ کی بیعت کریں۔ قاصد نے کہا، اطاعت اور وفاداری کا حلف نامہ دیں۔ محمد بن قاسم نے نئے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے دل پر پتھر رکھ کر سلیمان کی وفاداری قبول کرنی پڑی ہوگی۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو بلایا اور یہ خبر انہیں سنائی۔ ولید بن عبد الملک کی وفات سے زیادہ افسوس خبر یہ تھی کہ اب مسند خلافت پر سلیمان بن عبد الملک بیٹھ گیا تھا۔ کہاں ان سالاروں کا وہ جوش و خروش کے آگے ہی آگے بڑھنے کے لیے ہر دم تیار نظر آتے تھے، اور کہاں یہ افسردگی اور مایوسی جیسے یہ تھکے ماندے مسافروں کا گروہ سستانے کے لیے یہاں آ گرا ہو۔ ان سالاروں میں سے بعض محمد بن قاسم سے دگنی عمر کے اور کچھ 100 گنا عمر کے تھے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو جتنا سمجھا تھا اتنا محمد بن قاسم نہیں سمجھتا تھا۔ محمد بن قاسم مرد میدان تھا، فن حرب و ضرب اور عسکری قیادت کی صلاحیت خداداد تھی، مگر وہ ذاتی مفاد پرستی اور سیاست سے ناواقف تھا۔
वो नहीं समझता था कि लोग जाती सियासत बाजी में क्यों पड़ जाते हैं और जाती दोस्ती और दुश्मनी की खातिर किस तरह पूरी कौम के वकार को तबाह कर देते हैं। वो इंसानी फितरत के इस पहलू को नहीं समझता था। ये तो उसके जहन में आ ही नहीं सकती थी कि इख्तिदार के हवस का रावड़ और उसकी जाती सियासत उसे किस चक्की में पिसेगी। कुछ दिन गुजर गए। एक रोज दमिश्क से एक आदमी बिलाल बिन हिशाम आया। इतने लंबे सफर की थकन के अलावा वो घबराहट के आलम में था। उस वक्त मोहम्मद बिन कासम कैरेज में था। वो शबान सक्फी के साथ कहीं बाहर खड़ा था। बिलाल बिन हिशाम इनके करीब जाकर घोड़े से उतरा। पहले वो मोहम्मद बिन कासम से, फिर शबान सक्फी से बगलगीर होकर मिला। वो रो रहा था। उससे मोहम्मद बिन कासम के हेमे में ले गए। इब्ने कासम, बिलाल ने कहा, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो खुद मुख्तारी का ऐलान कर दे। ये इतना बड़ा मुल्क जो तूने फतह किया है, इसका मुख्तार कुल बन जा और इसे हिलाफत से आजाद करके अपनी सल्तनत बना ले। हुआ क्या है? मोहम्मद बिन कासम ने पूछा। वहाँ के हालात कैसे हैं? ये पूछो कि वहाँ क्या नहीं हुआ। बिलाल बिन हिशाम ने कहा, वहाँ सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की तलवार चल रही है। मरहूम खलीफा और मरहूम हिजाज के जितने भी हामी और साथी थे, उनमें से ज्यादातर को सुलेमान ने कत्ल करवा दिया है और बाकियों को ओहदों से फारग करके इन पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाए हैं कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जिसकी तरफ इशारा करके कह दो कि ये हिजाज का साथी था, उसे सुलेमान कत्ल करा देता है। और इब्ने कासम, सुलेमान ऐसा बौला हो गया है कि उसने चीन के फातेह कतीबा बिन मुस्लिम और उंदलस के फातेह मूसा बिन नसीर को गिरफ्तार करके बेड़ियां डाल दी हैं। उनके खानदानों को उसने भिखारी बना दिया है। मैंने सुना है कि इन दोनों फातिहीन को वो जलीलो हुआर करके मारेगा। बाद में ऐसे ही हुआ था। सुलेमान ने मूसा बिन नसीर को मक्का भेज दिया और उसे मजबूर किया था कि वो उम्रा और हज के लिए आने वालों से भीख मांगे। ये अलग दास्तान है जो किसी दूसरे सिलसिले में सुनाई जाएगी। सुलेमान ने तमाम अमीर तब्दील कर दिए हैं। बिलाल बिन हिशाम ने कहा, मशरकी मुल्कों का अमीर यजीद बिन मोहलब को बना दिया है। तू शायद जानता होगा कि यजीद बिन मोहलब की तेरे खानदान के साथ कितनी पुरानी दुश्मनी है। हिजाज का तो वो जानी दुश्मन था। यजीद बिन मोहलब ने एक हारची साले बिन अब्दुर्रहमान को हराज के महकमे का हाकम मुकर्रर कर दिया है। ये तुम्हारे खानदान का दूसरा दुश्मन है। इन दोनों ने मेरी मौजूदगी में ऐलानिया कहा है कि हम बनु सकीफ को हाक में मिला देंगे। इब्ने कासम, अब कोई सक्फी जिंदा नहीं रहेगा। तू भी सक्फी है। तेरी माजूली के अहकाम आ रहे हैं। तुझे मालूम होगा कि हिजाज ने साले बिन अब्दुर्रहमान के भाई को मरवा दिया था क्योंकि वो फितना परवाज हारची था। अब साले कहता है कि वो अपने भाई के खून का बदला लेगा। तू उसका पहला शिकार होगा। इब्ने कासम, माजूली से पहले खुद मुख्तारी का ऐलान कर दे। हाँ इब्ने कासम, शबान सक्फी ने कहा, समुंदर से सूरज तक अपना जो लश्कर फैला हुआ है वो सब तेरे साथ है। इस मुल्क के हिंदू भी तेरे साथ हैं। सब तेरे वफादार हैं। हम सब तेरे साथ हैं। खुद मुख्तार हो जा। नहीं, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मैंने खुद मुख्तारी की तरह डाल दी तो बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां मुझ जैसे सलार अमीर हैं, वो भी खुद मुख्तार हो जाएंगे। फिर सल्तनत उस्मानिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। दूसरे सलार भी आ गए। उन्होंने मोहम्मद बिन कासम से कहा कि वो खुद मुख्तारी का ऐलान कर दे और जब तक सुलेमान खलीफा है हिलाफत से ताल्लुक तोड़े रखे। लेकिन मोहम्मद बिन कासम न माना। वो कहता था कि हिलाफत का ताल्लुक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदुली नहीं करेगा। दमिश्क में सुलेमान के हुक्म से उसके मुखालिफिन का खून बहता रहा। हिजाज के खानदान के अफराद को पहले ओहदों और रुतबों से फारग किया गया, फिर उन्हें कत्ल कराया जाने लगा। इस खानदान की मस्तूरात को भी ना बख्शा गया। फिर मोहम्मद बिन कासम की माजूली का हुक्म आ गया और इसकी जगह यजीद बिन कबशा को सिंध का अमीर मुकर्रर किया गया। तारीखों में ये वाक़या नहीं कि मोहम्मद बिन कासम के खिलाफ इल्ज़ाम किया था। इल्ज़ाम आयद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये खानदानी, ज़ाती और सियासी अदावत और इंतकाम का मामला था। चूँकि इल्ज़ाम वाज़े नहीं, इसलिए इस्लाम दुश्मन अनासर ने नहायत बेहुदा इल्ज़ामात गढ़कर मोहम्मद बिन कासम पर थोपे हैं, जिनमें वो दो बड़ी खूबसूरत लड़कियों का नुमाया जिक्र किया गया है। अगर मोहम्मद बिन कासम पर ऐसा इल्ज़ाम होता या उसने ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया होता तो उसे गिरफ्तार करके काजी की अदालत में पेश किया जाता। हम इन मफरूज़ों का जिक्र नहीं करेंगे जो तारीख के दामन में डाल दिए गए हैं। सिंध का नया अमीर यजीद बिन कशबा सिंध आया तो मशरकी ममालिक के अमीर यजीद बिन मोहलब का भाई मुआविया बिन मोहलब भी उसके साथ था। इब्ने कासम, नए अमीर ने आते ही हुक्म दिया, मुआविया बिन मोहलब तुम्हें गिरफ्तार करके दमिश्क ले जाएगा। खलीफा ने उसे उसी मकसद के लिए मेरे साथ भेजा है। मोहम्मद बिन कासम ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले कमसिन मुजाहिद और बेशुमार मस्जिदें तमीर करने वाले के कपड़े उतरवा कर टाट के कपड़े पहनाए गए जो अहलाकी कैदियों को पहनाए जाते थे। उसके पाँव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं।
खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने महसूस न किया कि उसने इस्लाम को हथकड़ियां डाल दी हैं और अब इस्लाम इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा जहां तक उसे मोहम्मद बिन कासम ने पहुंचाया है। मोहम्मद बिन कासम के सलार और सिपाही हाकम और महकूम देख रहे थे और उनके आंसू बह रहे थे। मोहम्मद बिन कासम ने सब पर निगाह डाली और बुलंद आवाज से अरबी का एक शेर कहा, उन्होंने मुझे जाया कर दिया है और कैसे जवान को जाया किया है जो मर्दे मैदान था, सरहदों का मुहाफिज था। मोहम्मद बिन कासम को इराक ले गए। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक उसके सामने न आया। हराज के हाकम साले बिन अब्दुल रहमान ने हुक्म दिया कि उसे वासत के कैदखाने में कैद कर दो जहां उसके और हिजाज के खानदान और कबीले के आदमी कैद हैं। कैदखाने के दरवाजे में खड़े होकर मोहम्मद बिन कासम ने कहा, तुमने मुझे वास्त में कैद कर दिया और जंजीर डालकर मुझे बेकार कर दिया तो क्या हुआ, मुझसे ये एजाज तो नहीं छीन सकोगे कि वो मैं ही हूँ जिसने शहसवारों के दिलों पर दहशत तारी की और दुश्मनों को कत्ल किया है। मोहम्मद बिन कासम के आखिरी अल्फाज ये थे, ए ज़माने तुझ पर अफसोस है, तू शरीफों के लिए हाइन है। कैदखाने में मोहम्मद बिन कासम को अजीयतें दी जाने लगी और वो बर्दाश्त करता रहा। कबीला उक के एक आदमी को मोहम्मद बिन कासम पर निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था जो उसे हर वक्त किसी न किसी अजियत में मुब्तला रखता था। सुलेमान हर रोज उसके मरने की खबर का इंतजार करता था। आखिर उसने आखिरी इशारा दे दिया। साले बिन अब्दुल रहमान ने मोहम्मद बिन कासम को कैदखाने में ही आले अकील के हवाले कर दिया। इन लोगों ने मोहम्मद बिन कासम को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो अब जिंदा लाश बन चुका था। एक रोज आले अकील ने उसे इस कदर जदो कोब किया कि सिंध के नामी ग्रामी जंगजुओं पर हिबत तारी कर देने वाला अजीम फातेह इंतकाल कर गया। उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी। दीन के दुश्मनों से हथियार डलवाने वाला अपनों के हाथों खत्म हो गया। मोहम्मद बिन कासम की लाश देखकर एक शायर हमजा बिन बैज हनफी ने शेर कहे, ये तो मुरव्वत दिल की मजबूती और फ्याजी का पैकर था जिसने 17 साल की उम्र में लश्करों की क़यादत की। ये तो पैदाइशी कायद था। एक और शायर ने कहा, इसने 17 साल की उम्र में मर्दाने कारजार की सरदारी की। इसकी उम्र के लड़के अभी गलियों में खेल रहे थे। एक सितारा चमका और टूट गया, एक सितारा चमका और टूट गया। यहाँ से इक्तदार की सियासत चली। इक्तदार जिसके हाथ आया उसने मुखालिफिन को कत्ल, गिरफ्तार और जलीलो हवार किया। ये सियासत आज तक चल रही है और इस्लाम का सितारा मसनूई सियारा बनकर हला में भटक रहा है।